A very good morning, everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next part of our chapter. The name of the chapter is Food. Where does it come from? So in the last session, already we discussed some basic term from the chapter. So now in this session, we discuss about the what are the importance of food and food variety. So you know that food is one of our basic needs. Food is a complex mixture of various substances. So food gives us energy for doing the different kinds of activities in our daily life. तो फूड के माध्यम से हमारी बॉडी को क्या है एनर्जी ऑप्टेन होती है. उसी एनर्जी के माध्यम से हम क्या बोलते हो हमारे लाइफ में जितनी भी जो हमारे डेली की एक्टिविटीज है वो करते रहते हैं. सो आज की सेशन में हमें यही डिस्कशन कर लेना है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ फूड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स के लिए हो या एनिमल्स के लिए हो फूड की क्यों जरूरत पड़ती है, उनका क्या रोल है, उनके क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है. सो स्टार्ट टुडेस सेशन. The first one is what are the importance of food for human beings and the animals. It provides sufficient energy and heat for the body work and various other activities. Now see. So food provide sufficient energy and heat for body work. You know that our body consists of several organs. Each organ having the different name and the different function. For the function of each and every organism we require energy. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, उनका अलग नाम है, उनका अलग काम है. तो जो उनका जो वर्क है वो करने के लिए उनको क्या होता है एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो फूड प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी एंड हीट फॉर द बॉडी वर्क एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज. सो विद द हेल्प ऑफ फूड we can do different kinds of the activities in our daily life. After the digestion of a food, the energy obtained from the food is transferred with the help of a blood and the oxygen, all the parts of our body. हम फूड खाने के बाद उसका डाइजेशन होने के बाद उस जितनी भी जो हीट एनर्जी रेडी होती है उस एनर्जी को क्या बोलो तो अलग अलग पार्ट्स को क्या ट्रांसफर किया जाता है. ट्रांसफर करने के बाद ही उनका क्या बोलो तो हमारी बॉडी का क्या है वर्क हो जाता है. तो फर्स्ट वन उसका एप्लीकेशन रहेगा यूज रहेगा फूड का टू प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी एंड हीट फॉर बॉडी वर्क एंड अदर एक्टिविटीज इन आवर लाइफ. हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए जो हमारी बॉडी में ऑर्गन रहते हैं उनको वर्क करने के लिए और अलग अलग जो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज है वो करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है होने से यू मस्ट बी रिक्वायर फूड. नेक्स्ट नाउ इन ग्रोथ रिपेयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यूज. सो वी नो दैट the growth and development of our body is mainly depending upon the food because food provide energy. After the production of energy from the food, each and every organs of our body start growth and development. फूड से एनर्जी मिलने के बाद ही हमारे बॉडी का हर एक पार्ट क्या हो तो ग्रोथ होने को क्या है स्टार्ट करते हैं. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी and the repairing of a tissue. For example, if you are suffering from any diseases, after some days you are recover. कुछ समय के बाद हम ठीक होते हैं क्यों तो उसमें हमारे जो टिश्यू तो रहते हैं जो सेल्स को रहते हैं रिकवर किया जाता है. इन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट एंड द रिकवर ऑफ अ टिश्यू फूड इज very important. In adding bulk to the diet to keep the digestive system working well. Now see, in adding bulk to the diet to keeping the digestive system working well. डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्किंग जो वेल चलने के लिए अच्छा चलने के लिए भी क्या बोलते हो फूड की हमें क्या है जरूरत पड़ती है. Now now to protect the body from diseases and keep it healthy. So food play an important role to protect the body from the different kind of diseases from atmosphere and keep it healthy. जो अलग अलग प्रकार के जो बीमारियां हमारी बॉडी में आ जाती है उससे हमसे सेफ रहने के लिए हेल्दी रहने के लिए क्या हो तो हमें क्या है फूड्स की क्या है जरूरत.
So these are the importance of food for the human beings. Listen, so food play very important role in the life. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में each and every living organism is mainly depending upon the food. The lifestyle, the life process of a living organism is mainly depending upon the food. तो फूड के बिना जीना बहुत क्या बोलते हो मुश्किल. Listen, these are the importance of food. Now write down what are the importance of food. First one now see, to provide sufficient energy. To provide sufficient energy and heat, energy and heat for body work and various other activities Listen, to provide sufficient energy and heat for a body work and various other activities. Next one important, in growth, repair and maintenance of body tissues, Next one, in adding bulk to the diet, to keep the digestive system working well. Last one, to protect the body, from diseases and keep it healthy. So these are the importance of food in our life. तो हमारे लाइफ में फूड का क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है रोल. Understand? Now next one is the next one consider of chapter is food variety. अब हम डिस्कशन कर लेंगे फूड वैरायटी. The next one concept of our chapter is food variety. In the last session already we discussed what is food. हमने डिस्कशन किया व्हाट इज फूड एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड. अभी हमने डिस्कशन किया है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फूड वैरायटी. अब फूड वैरायटी के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन कर लेना है. नेक्स्ट वन इज फूड वैरायटी. फूड वैरायटी. नेक्स्ट वन नो सी, द वैरायटी ऑफ फूड इज अमेजिंग. ध्यान में रखिए, जो फूड में विविधता है, जो अलग अलग फूड्स हमारे हिंदुस्तान में खाए जाते हैं, वो एक क्या होते हैं अमेजिंग. द वैरायटी ऑफ फूड इज अमेजिंग. व्हाई द वैरायटी ऑफ फूड इज अमेजिंग, नाउ वी डिस्कस. अब हमें यही डिस्कशन कर लेना है. व्हाई द वैरायटी ऑफ फूड इज अमेजिंग. जो हमारे फूड में विविधता है, अलग अलग जो फूड खाते हैं लोग, वो एक अमेजिंग क्यों है, इसके बारे में हमें क्या है डिस्कशन कर लेना है. The cheap foods that people eat differ widely throughout the world. Now see, पूरे विश्व भर में अलग अलग प्रकार के क्या बोलो तो फूड्स को क्या है खा जाता है. इंडियन फूड्स varies from region to region. Now see,
इंडियन फूड्स आर वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो हमारे भारतीय जो फूड्स है वो अलग अलग रीजन में क्या होता है, अलग अलग फूड्स को क्या है कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र पुरनपोळी स्पेशल, वड़ा पाव इज स्पेशल, इन कर्नाटक रागी मुद्दा, इन आंध्र प्रदेश इडली डोसा, अगर हम केरला में जाते हैं मच्छी फ्राई। देयर आर द इंडियन फूड्स आर वेरीज फ्रॉम अ रीजन टू रीजन। Indian food can be split into the four categories. Now see, Indian foods are divided into the four categories. One is North Indian, South Indian, East Indian, and the West Indian. ध्यान में रखिए, हमारे जो फूड की जो वैरायटी है उसको क्या होता है, चार दिशाओं में क्या है उसको बांट दिए। सो इंडियन फूड्स कैन बी स्प्लिट इनटू फोर कैटेगरीज। वन इज नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत। हम सभी को मालूम है, ऑलरेडी वो डिस्कस इन सोशल में आपने पढ़ा से होगा। उत्तर भारत में कोसी स्टेट आते हैं, दक्षिण भारत में कोसी आते हैं, पश्चिम भारत में कोसी आते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ सी, इंडियन फूड कैन बी स्प्लिट इनटू द फोर कैटेगरीज। वन इज ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड द नॉर्थ। What people eat depends chiefly on where they live in the how much money they have. Now see, we are eating the different kinds of the foods in our daily life. It's mainly depending upon the where we live and how much money we have. हमारे पास कितना पैसा है, हम कहाँ पर रहते हैं, कौन से एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इसके ऊपर हमारा खाना क्या हो तो डिपेंड रहता है। ध्यान में रखिए, what people eat depends chiefly on where they live. वो कहाँ पर रहते हैं और उनके पास कितना पैसा है, इसके ऊपर क्या हो तो डिपेंड है। It also depends on their customs, lifestyles and the religious beliefs. Now see, it also depends upon their customs, lifestyles and the religious beliefs. एक कुछ वो तो धार्मिक उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जो हमारे हिंदुस्तान में जो अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग धर्म में क्या होता है, अलग अलग तरीके क्या है तो फूड्स कहा जाते हैं। Children learn many eating habits from their parents. जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो खाना खाते हैं वो अपने माँ बाप के आदत से ही वो क्या हो तो सीख लेते हैं। जो उनके माँ बाप खाना खा लेते हैं वही आदत क्या हो तो बच्चों को क्या है लग जाती है। तो चिल्ड्रंस लर्न मेनी ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो बच्चों की जो खाना खाने की आदत उनके माँ बाप से ही क्या हो तो लगती है। Understand? The variety of food is amazing. Understand? So Indian food varies from region to region, and Indian foods are divided into the four categories. One is East Indian, South Indian, North Indian, and the West Indian. What people eat is depend upon the where the people live and how much money we have. उनके पास कितना पैसा है, वो किस एरिया में रहते हैं, इसके ऊपर ही उनका खाना क्या हो तो डिपेंड है। एंड इट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर कस्टम्स, लाइफ स्टाइल। उनका लाइफ स्टाइल और उनके धर्म के आधार के ऊपर भी क्या है उनका क्या हो तो ईटिंग हैबिट्स क्या है डिपेंड है। एंड चिल्ड्रन लर्न मेनी ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बच्चे जो खाने की आदत कर लेते हैं वो अपने माँ बाप से ही क्या हो तो सीख लेते हैं। अंडरस्टैंड? The location, climate, and the physical features of a region helps to determine the food of a people that region. जिस एरिया में पीपल रहते हैं उस एरिया का लोकेशन, उस एरिया का एटमॉस्फेरिक कंडीशन उनको क्या है बोलो तो डिसाइड करता है कि वो किस तरह के फूड खाए। मैंने अभी हमको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल दोस पीपल्स आर बिलोंग्स टू द केरला, बिलोंग्स टू द तमिलनाडु, बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ foods is depending upon the climatic condition. किसके ऊपर डिपेंड है? Is depending upon the climatic condition and the physical features. जो वैरायटी फूड हमारे हिंदुस्तान में खा जाते हैं ये मेनली किसके ऊपर डिपेंड है बोलो तो डिपेंडिंग अपॉन उस एरिया में रहने वाले पीपल का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या रहेगा, उनके फिजिकल फीचर्स क्या रहेंगे, इसके ऊपर उनकी क्या हो तो ईटिंग हैबिट्स क्या है डिपेंड रहती है। अंडरस्टैंड? This is the food variety. Hence, the variety of food is called as the amazing. इसलिए variety of food को क्या हो तो
अमेजिंग क्या है कहा जाता है. Listen, write down food variety. 5. Variety of a food is called as the amazing. The variety of food is amazing. The variety of food is amazing. Indian food varies from region to region. Indian food varies from region to region. Region to region. Indian food can be split into 4 categories. 4 categories. One is North Indian, South Indian, East Indian, and West Indian. Next, now see what people eat. Depends chiefly on where they live, and how much money they have. The location, climate, and physical features of region helps to determine the food of people in that region. Understand? It's the variety of a food. Okay, now the next one concept, some special dishes from different regions in India. Now see, some special dishes from a different region. जो डिफरेंट रीजन से जो डिशेस आते हैं इसके बारे में अब हमें क्या कर लेना है, डिस्कशन कर लेना है. Some special dishes from different regions in India. First one is North India. Some special dishes. The next one concept is some special dishes from different regions in India. Some special dishes from different regions in India.
हमारे हिंदुस्तान में जो अलग अलग प्रकार के जो डिशेस है, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आते हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन कर लेना है। फर्स्ट वन रीजन हम लेते हैं नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन से स्पेशल डिशेस है, इसके बारे में अब हमें डिस्कशन कर लेना है। नॉर्थ इंडिया, सो वी नो दैट जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ आर दी नॉर्थ स्टेट्स। ये क्या बोलते नॉर्थन स्टेट्स है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड चंडीगढ़ आर दी नॉर्थन स्टेट्स ऑफ आवर नेशन। तो इन राज्यों में कौन से प्रकार के डिशेस खाए जाते हैं, कौन से प्रकार के डिश स्पेशल है, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है। फर्स्ट वन रोटी, पराठा, तंदूरी रोटी, नान पूरी, भटूरे, डेयरी प्रोडक्ट्स, तंदूरी चिकन, गोट एंड लैम मीट, मटन, सरोसा का सास एंड माँ की रोटी, पिकल्स एंड वेजिटेबल्स आर सम कॉमन नॉर्थ इंडियन डिशेज। देयर आर द डिफरेंट नॉर्थ इंडियन डिशेज। उसमें स्पेशल रहेगा अपना क्या है, रोटी, पराठा, माँ की रोटी, पिकल्स है, तंदूरी चिकन है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, सरसों का साग है। देयर आर दी स्पेशल डिशेस फ्रॉम नॉर्थ, जो हमारा उत्तरी भारत है, जिस तरह से अपना जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, इन राज्यों में रहने वाले जो लोग हैं, उनका ये क्या बोलते तो स्पेशल क्या है, डिशेस, उनका ये स्पेशल खाना है। अंडरस्टैंड? नॉर्थ इंडिया में जो स्पेशल डिशेस है वो कौन से बोलते, रोटी, पराठा, रोटी पराठा, तंदूरी रोटी, भटूरे, डेयरी प्रोडक्ट्स, तंदूरी चिकन, सरसों का साग, एंड माँ की रोटी एंड मक्की की रोटी, मक्की की रोटी आर सम कॉमन नॉर्थ इंडियन डिशेस, आर सम कॉमन नॉर्थ इंडियन डिशेस। ये क्या बोलो तो उत्तरी राज्यों की ये क्या है, स्पेशल डिशेस, इंडियन डिशेस। अंडरस्टैंड? रोटी है, पराठा है, बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग डिशेस है, वो क्या बोलते तो नॉर्थ हमारा जो हिंदुस्तान है उसके इन पीपल का क्या है, मेन क्या बोलते तो डिशेस। अब हम देखते हैं साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन सी डिशेस फेमस है? अंडरस्टैंड? सो नॉर्थ इंडिया में so these are the special dishes of नॉर्थ इंडिया। नाउ सी नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं साउथ इंडिया। सो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आर दी साउथर्न स्टेट। ये हमारे हिंदुस्तान के क्या रहेंगे बोलो तो दक्षिणी भाग के क्या रहेंगे, हिस्से रहेंगे। अंडरस्टैंड? साउथ इंडिया, साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत जिसको हम कहते हैं। तो दक्षिण भारत में हमारे कौन से राज्य थे तो तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आर दी साउथर्न स्टेट। ये हमारे क्या बोलते साउथर्न स्टेट है। दोनों राज्यों में कौन से विशेष खाए जाते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है। डोसा, इडली, वड़ा, सांबर, बोंडा, बाजी, मतलब टिपिकल साउथ इंडियन स्नैक्स है। क्या बोलते टिपिकल इंडियंस क्या है, स्नैक्स है। साउथ इंडियन स्टेट्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ प्रिपेयरिंग सांबर। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का क्या होता सांबर को क्या है प्रिपेयर किया जाता है। सम पॉपुलर डिशेस इंक्लूड द हैदराबादी बिरयानी, घी राइस विथ मीट करी एंड द सी फूड्स नाउ सी। So Hyderabadi biryani is very famous in the Hyderabad, in the Telangana and the Andhra Pradesh. Ghee rice is very famous in the Tamil Nadu. Tamil Nadu में mostly क्या होता है घी राइस है विथ मीट करी एंड द सी फूड्स। ये केरला में बहुत चलता है जो अपना मीट करी एंड द सी फूड्स।
Understand? So now see, dosa, idli, vada, sambar. Dosa, idli, sambar. Dosa, idli, sambar, bonda. Bonda and bhaji. And bhaji. And bhaji are a typical South Indian स्नैक्स. ये क्या होता कुछ फेमस क्या होता स्नैक्स है कहा क्या होता साउथ इंडिया. नाउ सी सम पॉपुलर डिशेस, कुछ उनकी जो पॉपुलर डिशेस रहेंगे. सम पॉपुलर डिशेस लाइक इंक्लूड हैदराबादी बिरयानी, घी राइस, with meat curry and seafoods. With meat curry and seafoods. So these are the स्पेशल डिशेस फ्रॉम साउथ इंडिया. ये हमारा जो दक्षिण भारत में एक डिशेस क्या होता है बहुत ही क्या है फेमस है. अब हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया. हमारा जो पूर्वांचल भारत है इसके बारे में हमें पढ़ लेना है. तो पूर्वांचल भारत में जो अपने स्टेट आते हैं वहाँ पर रहने वाले लोग कौन से प्रकार की डिशेस खाते हैं इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है. पूर्व भारत की तरफ हम चलते हैं. अब तक हमने देखा है उत्तर भारत, दक्षिण भारत. अब हम चलते हैं पूर्व की तरफ चलते हैं. नाउ से ईस्ट इंडिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, मणिपुर, मेघालय आर दी ईस्ट इंडियन स्टेट. ये अपने क्या बोलते हो पूर्व भाग में आने वाले क्या बोलते हो स्टेट है. तो इस में कौन से प्रकार के डिश खाते लोग ध्यान में रखना है. ईस्ट इंडिया इज फेमस फॉर इट्स डेजर्ट्स. सो नो दैट हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है वो किस लिए फेमस है. इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स डेजर्ट्स, स्पेशली स्वीट्स सच एज रसगुल्ला, चुमचुम, संदेश, रसगोली, चन्ना पोड़ा, चन्ना गाजा and kheer. So these are the special dishes from the East India. So some kinds of noodles and most common in the north is state. Rice and hilsa fish are very popular in the coastal states of Odisha and the West Bengal. Rice and hilsa fish are very famous in the coastal states of Odisha and the West Bengal. हमारे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में क्या बोलो तो जो अपना हिल्सा फिश है वो क्या बोलो तो बहुत ही क्या है फेमस. तो हमारा ईस्ट इंडिया किसके लिए फेमस है. वेरी फेमस फॉर द डेजर्ट्स, स्पेशली स्वीट्स के लिए क्या बोलते ईस्ट इंडिया का बोलते फेमस है. अपना रसगुल्ला है, चुमचुम है, सैंडेस है, रसाबोली है. तो अलग अलग प्रकार की जो क्या बोलते स्वीट पदार्थ वहाँ पर क्या है बनाए जाते हैं. अब लास्ट पढ़ेंगे वेस्ट इंडिया. So West India has 4 major food groups: राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्रियन. ध्यान में रखिए वेस्ट इंडिया हैज 4 मेजर फूड ग्रुप्स. हमारा जो ए है पश्चिमी जो भाग है अंडरस्टैंड उसमें क्या होता है फूड को क्या है 4 इसमें उन्होंने डिवाइड किए. सो उसमें एक है राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्रियन एंड गोयल, ढोकड़ा, खंडावी एंड कोरी. फ्रॉम गुजरात श्रीखंड, पानीपुरी, भेलपुरी एंड पाव भाजी. From Maharashtra, bajra, roti, geti, sabji, samargi. From the Rajasthan, and a mixture of a traditional food with a heavy use of rice, coconut, and the seafoods from Goa are famous West Indian dishes. So that Maharashtra is very famous for pani puri, bhel puri, and the pav bhaji. Understand? And Gujarat is very famous for Srikhand. And our Rajasthan is very famous for bajra, roti, gati ki sabji, and the Sangiri are the very famous in the Rajasthan. And in Goa, now see rice, coconut and the seafoods are very famous in the Goa. So these are the special foods from the East and the West India. Understand? These are the some special dishes from different regions in the India.
Okay, we stop here. So in this session, we already discussed what are the importance of food, and the variety of food is amazing, and some different dishes in the different regions of our nation. Okay, we'll stop here. We will continue on the next session. Stay safe, stay indoors from a Universal Public School or Shahjan.